अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 10 की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मार्खोर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। इसका आंसर है द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द इकोसिस्टम बैलेंस्ड. Snow leopards help control markhor populations, which helps plants grow. Question number 2 है how do the snow leopard and the markhor's adaptations help them survive in the mountains? इसका आंसर है snow leopards have thick coats and wide paws to survive in the mountains. Markhors have strong horns and hooves to climb steep terrains. Question number 3 है what are the benefits and potential concerns of community-led conservation programs like trophy hunting? इसका आंसर है trophy hunting helps conservation by giving money to local communities, but it can be bad if not managed properly and animals are hurt. Question number 4 है what might happen to the mountain ecosystem if either the snow leopard or the markhor disappeared? इसका आंसर है if snow leopard disappear, markhors will overgraze and plants will die. If markhors disappear, snow leopards will lose their food source. Question number 5 है how do human activities like poaching and habitat destruction threaten the balance between the snow leopard and the markhor? इसका आंसर है poaching and habitat destruction hurts snow leopards and markhors. Humans take their homes and kill them for their body parts. Question number 6 है how is the markhor adapted to living in mountains regions? इसका आंसर है markhors have strong hooves to climb steep mountains. Their coats change with the seasons to keep them warm or cool. Question number 7 है what more can be done to raise awareness about protection endangered species like the snow leopard and the markhor? इसका आंसर है we can raise awareness by teaching kids about these animals. We can also tell people about the importance of conservation. Question number 8 है how did the description of the snow leopard and the markhor impact your understanding of these animals and their environment? इसका आंसर है the description helped me learn about these amazing animals. I now care more about protecting them and their homes. Next है part B, choose the correct answer. आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं और उनके साथ उनके options भी दिए गए हैं. आपको इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है. फर्स्ट है व्हाट माइट बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम इफ द स्नो लेपर्ड वर टू बिकम एक्सटिंक्ट. ऑप्शन ए द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर्स लाइक द मार्खोर वुड इंक्रीज लीडिंग टू ओवरग्रेजिंग. ऑप्शन बी द मार्खोर पॉपुलेशन वुड डिक्रीज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटेक्शन. ऑप्शन सी द इकोसिस्टम वुड बिकम healthier without predators. Option D, the environment would remain unchanged. Option A is the correct option. The population of herbivores like the markhor would increase, leading to overgrazing. Second है how do community-based conservation efforts such as trophy hunting benefit both wildlife and local people? ऑप्शन ए है दे रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बाय एलिमिनेटिंग प्रेडेटर्स. ऑप्शन बी है दे जनरेट इनकम फॉर लोकल्स एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स. ऑप्शन सी है दे हेल्प इंट्रोड्यूस फॉरेन स्पीशीज इन लोकल इकोसिस्टम. ऑप्शन डी है दे अलाउ अनकंट्रोल्ड हंटिंग रिड्यूसिंग एनिमल पॉपुलेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दे जनरेट इनकम फॉर लोकल्स एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स. Third है what lesson can be learned from the successful conservation efforts of the snow leopard and the markhor? Option A है conservation only works if predators are removed from the ecosystem. Option B है animals can survive without human intervention. Option C है involving local communities in conservation efforts leads to better outcomes. Option D है conservation is not necessary for naturally strong species.
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Involving local communities in conservation efforts leads to better outcomes. Fourth है, why is it important to maintain the balance between predator and prey in ecosystem like those of the snow leopard and the markhor? ऑप्शन ए है to increase tourism in mountain regions. ऑप्शन बी है to ensure the predators do not starve. ऑप्शन सी है to keep herbivore populations in check and protect vegetation. ऑप्शन डी है to help predators dominate the ecosystem. Option C is the correct option, to keep herbivore populations in check and protect vegetation. Fifth है, what is one potential drawback of trophy hunting programs even when they help conservation efforts? Option A है, they may lead to uncontrolled hunting of species. Option B है, they only focus on predator like the snow leopard. Option C है, they may prioritize financial gain over the welfare of animals. Option D है, they do not involve local communities in any way. Option C is the correct option, they may prioritize financial gain over the welfare of animals. नेक्स्ट है पार्ट सी. पार्ट सी बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके बाद है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में पार्ट ए है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन वर्ड्स के डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स लिखने हैं और इनके कॉन्टेक्स्ट क्लूज लिखने हैं. फर्स्ट है बैलेंस. इसका कॉन्टेक्स्ट क्लू है विदाउट स्नो लेपर्ड्स द मार्खोर पॉपुलेशन कैन इंक्रीज कॉजिंग ओवरग्रेजिंग एंड डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. इसका डिनोटेटिव मतलब है अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी. कॉनोटेटिव मीनिंग है हार्मनी, स्टेबिलिटी and health of the ecosystem. Second है elusive. इसका context clue है the snow leopard is one of the most elusive animals on the planet. इसका denotative meaning है difficult to find or catch और connotative meaning है mysterious, rare and hard to detect. Third है heritage. The markhor holds a special place in Pakistan's cultural and environmental heritage. इसका डिनोटेटिव मीनिंग है प्रॉपर्टी और असेस इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स. इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है नेशनल प्राइड, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड प्रीशियस लेगेसी. फोर्थ है प्रेडेटर. इसका कॉन्टेक्स्ट क्लू है स्नो लेपर्ड्स आर टॉप प्रेडेटर्स इन द इकोसिस्टम. इसका डिनोटेटिव मीनिंग है एन एनिमल दैट नेचुरली प्रेज ऑन अदर्स. कॉनोटेटिव मीनिंग है स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस इन द इकोसिस्टम. लास्ट है वल्नरेबल. इसका कॉन्टेक्स्ट क्लू है बोथ स्पीशीज रिमेन वल्नरेबल नीडिंग कंटिन्यूड प्रोटेक्शन. इसका डिनोटेटिव मीनिंग है ससेप्टिबल टू हार्म और अटैक. इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है वीक, डिफेंसलेस एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन. नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में पार्ट ए है एड हाइफन्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स वेयर नीडेड. इसमें पहला सेंटेंस है द एडिटर इन चीफ मेड सेवरल चेंजेस टू द मैन्युस्क्रिप्ट. अब एडिटर इन चीफ, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को शो कर रहे हैं. तो एडिटर इन चीफ, एडिटर और इन के दरमियान और इन और चीफ इनके दरमियान क्या आ जाएगा? हाइफन आ जाएगा. सेकेंड है द स्टूडेंट गेव अ वेल रिटन टेस्ट. वेल और रिटन इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा? हाइफन आ जाएगा. थर्ड है द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टेट और ऑफ के दरमियान हाइफन आ जाएगा, ऑफ और द के दरमियान हाइफन आ जाएगा, द और आर्ट के दरमियान हाइफन आ जाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट ये कनेक्शन शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. फोर्थ है ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम टीचर. पार्ट और टाइम के दरमियान भी हाइफन आ जाएगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन शो कर रहे हैं. फिफ्थ है माई ब्रदर इन लॉ इज़ विजिटिंग दिस वीकेंड. ब्रदर इन लॉ इन तीनों का कनेक्शन है तो ब्रदर इन दोनों के दरमियान एक हाइफन आ जाएगा और इन और लॉ इन दोनों के दरमियान हाइफन आ जाएगा. पार्ट बी है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनके अंदर ब्लैंक भी हैं.
आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दिए गए हुए हैं जिनकी जो वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वही है जो आपने ब्लैंक्स में लगानी है। जैसा कि फर्स्ट है द रिवर रन्स डैश द सिटी। अब हमारे पास ये THROO ये दिया गया है। अब अगर हम इन्हें जोड़ के इस स्पेलिंग को जोड़ के अगर हम इसे प्रोनाउंसिएशन इसकी करें तो क्या बनता है, थ्रू बनता है। और थ्रू के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, THROUGH। इट मीन्स इस ब्लैंक में ये वाला थ्रू आ जाएगा, THROUGH। सेकेंड है शी हैड अ डिफ़िकल्ट डे बट शी स्माइल्ड एज डैश शी हैड नॉट गॉन मच। यहाँ पे अब हमें THO ये दिया हुआ है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो दो बन जाएगा। इट मीन्स कि इसकी ब्लैंक में THOUGH वाला दो आ जाएगा, जो कि सही वर्ड है। थर्ड है द फैब्रिक ऑफ द स्वेटर फेल्ट वेरी डैश अगेंस्ट माई स्किन। अब यहाँ पे हमें RUFF दिया हुआ है, अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा रफ। रफ के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, ROUGH। तो यहाँ पे ब्लैंक में ROUGH वाला रफ मतलब खुरदरा ये आ जाएगा। फोर्थ है ही हैड नॉट डैश मच अबाउट द टॉपिक बिफोर द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे THAWT ये दिया हुआ है हमें, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे पास ये थॉट बन जाएगा। और थॉट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, THOUGHT। ब्लैंक में THOUGHT जिसका मतलब होता है सोचना, ये वाला थॉट आ जाएगा। लास्ट है वी डोंट हैव डैश मनी टू बाय दैट कार। यहाँ पे हमें ENUFF दिया हुआ है, अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये बन जाएगा इनफ। तो इनफ के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, जिसका मतलब काफ़ी है, इसके क्या स्पेलिंग होते हैं, ENOUGH। तो ब्लैंक में ये वाला इनफ आ जाएगा। पार्ट सी है मेक 3 हाइफेनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस प्रोवाइडेड बिलो। आपको यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं और कहा हुआ है कि इन प्रीफिक्सेस के आपने हाइफेनेटेड वर्ड्स बनाने हैं, मतलब ऐसे वर्ड जिनके दरमियान में हाइफन्स आएंगे। और कितने वर्ड्स बनाने हैं, 3। तो सबसे पहले है सेल्फ, इसका हम सेल्फ इस्टीम भी बना सकते हैं, सेल्फ केयर भी बना सकते हैं और सेल्फ पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। और इनमें हर एक वर्ड के दरमियान हाइफन ज़रूर आएगा। एक्स में अब एक्स बॉयफ्रेंड भी आ सकता है, एक्स वाइफ भी आ सकती है और एक्स प्रेसिडेंट भी आ सकता है। को में को वर्कर भी आ सकता है, को फाउंडर भी आ सकता है और को ऑथर भी आ सकता है। फोर्थ है नॉन में नॉन प्रॉफिट भी आ सकता है, नॉन फिक्शन भी आ सकता है और नॉन स्टॉप भी आ सकता है। नेक्स्ट है पार्ट डी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंडिंग इन ऑफ फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। अब वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जिस तरह पार्ट बी में थे उसी तरह के ही ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने इन सेंटेंसेस को, इन ऑप्शन को देखते हुए फिल करना है। फर्स्ट है वी प्लेड आउटसाइड डैश इट वॉज ड्रिजलिंग। अब यहाँ पे ब्लैंक में दो आएगा या थ्रू आएगा या थॉट आएगा, ऑल दो आएगा। ऑल दो इज़ द करेक्ट आंसर, तो आपने इस ब्लैंक में ऑल दो लिख देना है। सेकेंड है देयर वॉज नॉट डैश शुगर लेफ्ट फॉर टी। ऑप्शन है ऑल दो, इनफ, ब्रॉड। इनफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो ब्लैंक में इनफ आ जाएगा। थर्ड है किरण नीडिड द डैश टू मेक ब्रेड। ऑप्शंस हैं कफ, डो, बो। तो डो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम पेड़ा कहते हैं। किरण नीडेड द डो टू मेक ब्रेड। नेक्स्ट है द स्टॉर्म ब्लू द लीव्स ऑफ द डैश, बो थ्रो दो। बो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट है ही हैड अ स्वेयर डैश थ्रू आउट द डे। रफ या कफ या थॉट। कफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसे खांसी भी कहते हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।